Hello, Bacho. Welcome back to the Tantra Physics classes. Today we are starting a new chapter that is friction. This is the first lecture on friction that I delivered here on mine from Tantra Physics classes. तो फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा पहले. You see how important it is in our lives. Without friction, you cannot imagine your life. It is so important in our day-to-day life. You cannot walk on the ground if there is no friction. Tires cannot roll on the ground if there is no friction. Space stones coming from the skies, when they enter our atmosphere, they burn due to friction. अगर वो वहाँ burn नहीं करेंगे, they will bomb the earth. वो earth पर आ जाएंगे. Drilling a hole, वो भी friction. You are holding. I am holding this this marker on my hand. In my hand, this marker, I hold it. It is because of friction. Had there been no friction, it will slip. It will slip. It will slip. It will slip. You are holding. You are आपका जो grip है, that is due to friction. आपने देखा होगा जो ये wrestlers होते हैं. Wrestling से पहले वो अपने आप को वो तेल मलते हैं. They just put oil on their bodies ताकि उन पर grip ना आए. Friction, they reduce friction. It is very, very necessary for humans. Pulling your teeth, sometimes one has to pull his teeth out. दांत निकालना पड़ता है. वो जो grip होती है, दांत निकालने के टाइम जो वो grip होता है, that is due to friction. It is very necessary, but it is evil at the same time. क्योंकि जो friction होता है, जब frictional force is there, it creates heat and energy is lost. So frictional forces, they produce heat. That is an undesirable form of energy. Heat energy is something which is lost in this from this system. तो ठीक है, ये necessary भी है लेकिन evil भी है at the same time because it drains out energy. तो क्या है ये frictional force? मैंने आपको बताया कि without friction we cannot imagine our lives. It is so important. You cannot walk on the ground. जैसे during winter when there is ice, you slip. अब slip करते हैं ऐसे slip करते हैं. So, first of all, what is this? Where from this frictional force comes? Point number one. This frictional force acts between the two bodies when they are in contact. First of all, they must be in contact. Two bodies must be in contact. Not solid bodies, two bodies. Water in contact with oil. Even between two different oil layers. Solid in contact with oil, oil with oil. Even gas with oil, there is a friction. So here I will define frictional force between two solid bodies. Let me suppose two solid bodies are in contact. When they are in contact and they have a relative motion, they must rub each other. They must have a relative motion or a tendency of relative motion. Two bodies should be in contact. They must have a relative motion or a tendency of relative motion. They are about to have a relative motion. They are not having a relative motion, but about to have. They have a tendency to have relative motion. There is a frictional force along the contact of the two surfaces. So, the frictional force is produced when two bodies are in contact and have a relative motion. Frictional force. Is produced along the surface, along the interface of two bodies when they have a relative motion or a tendency of relative motion.
Two bodies are in contact, they are in relative motion, and or they have a tendency of relative motion. Then there is a force along the two surfaces, along the surface in contact, along the surface in contact. Second point, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो ये ऊपर वाला बॉडी जो है, जो नीचे सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, they can have a relative this frictional force if this body is in motion. और नीचे वाला बॉडी सरफेस जो रेस्ट में है, ऊपर वाला बॉडी मोशन में है, तो there is a frictional force. और this body has a tendency of motion. अगर इसको टेंडेंसी, आपने फोर्स दिया, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन टेंडेंसी है मोशन की, then again there is a फ्रिक्शनल फोर्स. सो इस फ्रिक्शनल फोर्स का ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन यह है कि जो दो एक सरफेसेस है, जो ये दो सरफेस है, इनका जो रफनेस है, undulations, the roughness of the two surfaces when they are in contact, their undulations, their roughness, that creates a frictional force. The undulations, the undulations between the surfaces, between the two surfaces, between the two surfaces, or when the two surfaces are in contact, जब दो सरफेस कंटैक्ट में होते हैं, there is always interatomic distance. ऐसा नहीं कि two atoms touch each other. There is always interatomic distance between the two surfaces, and the electric force between the two surfaces, that is some kind of frictional force. So frictional force is basically electrical in nature. Frictional force is basically electrical in nature. जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, तो their atoms have interatomic distance between them. When you pull them, rub them together, relative motion, the bonds between the atoms, they break and remake, break and remake, and that produces a force which is called as frictional force. जैसे ये बॉडी है, इसके एटम्स और इसके एटम्स, जब ये बॉडी आगे आप मूव कर रहे हैं, इन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स मेक हो जाते हैं. द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, दैट क्रिएट्स अ फोर्स दैट वी कॉल एज फ्रिक्शनल फोर्स. सो इन शॉर्ट, अगर समराइज मैं करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स. यू कैन नॉट लिव विदाउट अ फ्रिक्शनल फोर्स. But frictional force also produces heat. It rubs the two bodies up. It creates heat generated, and which is an undesirable form of energy. It dissipates energy. We cannot do anything without friction. You cannot walk on the ground without friction. Walking on the ground is because of friction. Tires roll because of friction. The space stones come from the skies and they enter the atmosphere. They burn and become ashes because of frictional force with the atmosphere. Otherwise, they will reach the surface of the earth and they will bomb the earth. Drilling is frictional force. Catching hold of somebody is frictional force. Catching hold of something like this is a frictional force because of frictional force. Now, the question now is how to find direction of frictional force. Direction of frictional force. Direction of friction or friction. Frictional force is a vector. It must have magnitude. It must have direction. अब बात यह है कि पहली बात तो ये है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का. बाद में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. Both are tricky. If we don't understand how direction is found of frictional force or how magnitude is found, दोनों में गलतियां हो सकती है. तो पहले मैं डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूंगा.
द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दो टेक्निक्स है। एक टेक्निक ये है एक बॉडी पर मुझे देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है। टेक्निक ये है कि इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन, या इमेजिन करना है कि फ्रिक्शन है नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है फिर देखना है ये जो बॉडी है व्हाट इज इट्स टेंडेंसी ऑफ मोशन। इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन एंड वॉच द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जब आपने वॉच किया बॉडी को कहां जाना था, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन इज अपोज टू दैट। मैं लिखूंगा इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन, इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन, इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन, वॉच द टेंडेंसी, watch the tendency of motion of the body, motion of the body. Frictional force direction is opposed to that tendency. Friction is opposed to that tendency. Friction direction is opposite to that tendency. ये पहला टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन, वॉच द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन डायरेक्शन इज अपोज टू दैट टेंडेंसी। ये टेक्निक है। अब मैं कहूंगा इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई स्टूडेंट आकर के कहता है सर देयर इज फ्रिक्शन, व्हाई शुड आई इमेजिन। अरे यार टेक्निक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इमेजिन करो कि फ्रिक्शन नहीं है और देखो बॉडी को जाने का कहाँ इरादा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोज टू दैट। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। B. The direction of frictional force is such. Direction of frictional force कुछ ऐसा है उसका डायरेक्शन है as to oppose the relative motion between the two bodies. The direction of friction is such as to oppose the relative motion. ये कोई मिसअंडरस्टैंड करता है, कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू मोशन। नो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट अपोजिट टू मोशन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। रिलेटिव मोशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हो गया ये। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स, फोर्थ, जैसे अगर ये बॉडी है सरफेस पर, मैंने यहां फोर्स दिया एफ मैंने फोर्स दिया, बॉडी डज नॉट मूव। बॉडी इसलिए मूव नहीं करते, कोई भी बॉडी सरफेस पर है, आपने पुश किया, क्या हमेशा मूव करती है बॉडी? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये मूव नहीं करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी है। मीन्स ये दिस इज नॉट द ओनली फोर्स, देयर इज वन मोर फोर्स which when combined with this force make a zero force. That is why the body does not move. आपने ये फोर्स दिया लेकिन बॉडी मूव नहीं करता है। हमें देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है। आप खुद ही कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक, लेकिन इमेजिन करो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो इस फोर्स से बॉडी को क्या हो जाता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज फ्रिक्शन नहीं होता, आपने ये फोर्स दिया तो इस फोर्स की वजह से ये आगे की ओर एक्सेलरेट हो जाता है। दैट इज वाई फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट। मतलब कि अगर फोर्स एफ आपने दिया और फ्रिक्शन नहीं होता तो सीधी सीधी बात थी कि बॉडी आगे जाती, तो बॉडी आगे जाती तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज टू दैट। जहां इस बॉडी को जाना था, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसके अपोजिट है। या दूसरी बात, दूसरे एग्जांपल, ये देखो, ये बॉडी यहां पर एक ही जगह है, आपने इंक्लाइन पर रखा। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई देखो फ्रिक्शन कहां से है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज इमेजिन आप इमेजिन कर लो देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसको क्या हो जाता है, नीचे की ओर स्लिप करता है ना बॉडी, नीचे की ओर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सीधे सीधे नीचे आ जाती, तो फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट।
तो वॉच करो कि अगर फ्रिक्शन को एब्सेंट आप करोगे बॉडी को कहां जाने का खतरा है, जहां जाने का खतरा है फ्रिक्शन फोर्स उसके उल्टा है। सी, देखिए एक ट्रक है, ट्रक चल रहा है और ये बॉडी यहां पर है। वैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा कि अगर ट्रक आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर ये बॉडी ट्रक आगे जा रहा है और इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर है। वो बात ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इनके दरमियान फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ट्रक नीचे से स्लिप कर जाती, यह अपनी जगह रहता। ट्रक नीचे से स्लिप कर जाती और ये अपनी जगह रहता कि अगर ये इनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं था, तो इस ड्राइवर को लगेगा ये जो बॉडी है पीछे की ओर खिसक जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इस ड्राइवर को यह लगेगा कि ये जो बॉडी है पीछे की ओर खिसक जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इज फॉरवर्ड। अरे भाई कौन फोर्स इसको आगे ही ले जाता है विद द ट्रक? इट इज द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच टेक्स इट फॉरवर्ड। डी, जब आप चल रहे होते हैं आगे, कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि व्हेन यू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपको लगता है किसी बच्चे ने, मैं पढ़ाता हूं, वो कहते हैं कि सर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर होना चाहिए। इफ आई आस्क यू हाउ डू यू नो दैट, सब वो कहते हैं नहीं सर आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोज टू मोशन। अरे यार फ्रिक्शन फोर्स अपोज टू रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। तो अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ये आपका जो फीट है, ये फीट है आपका, ये आपका फीट है। आप आगे की ओर जा रहे हैं, इस फीट को आप पीछे की ओर पुश कर रहे हैं, फीट को आप पीछे की ओर पुश कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता आपके फीट के दरमियान, आपके फुट के दरमियान और अर्थ के दरमियान, अगर फ्रिक्शन नहीं होता और आप फीट को पुश करते पीछे की ओर, तो आप तो पीछे की ओर स्लिप ही कर लेते, आपका मोशन पीछे की ओर ही हो जाता है। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज फॉरवर्ड। अगर आप चल रहे हैं आगे, तो जो फीट आपका है, आप फीट को पीछे की ओर पुश कर रहे हैं आगे जाने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पीछे की ओर ही जाते, स्लिप कर लेते पीछे की ओर। तो दैट इज व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज फॉरवर्ड। द मोशन ऑफ योर फीट in the absence of friction is backward. That's why friction force is forward. D, E, ये समझो एक बेल्ट है, ये बेल्ट है जो चल रहा है इन पुलिस के ऊपर, और आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा। कहां इस पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है? इस ऑब्जेक्ट पर। देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर सरफेस एंड द बेल्ट। इस पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है? शायद अगर आप गलती से कहोगे पीछे की ओर है, गलती से, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इज फॉरवर्ड। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये अपनी जगह रह करके ये बेल्ट आगे की ओर जाता, और बेल्ट पर जो पर्सन हो, इमेजिनरी पर्सन अगर यहां है, उसको लगेगा ये जो ऑब्जेक्ट है पीछे की ओर खिसक गया है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज फॉरवर्ड। देख लो कि फ्रिक्शन को एब्सेंट करो और देखो बॉडी को जाने का कहां इरादा है, तो फिर जाकर आप कहोगे फ्रिक्शन इज अपोज टू दैट टेंडेंसी। अच्छा, मैं दूसरा तरीका दिखाता हूं, सेकंड मेथड। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स is opposite to relative motion. मतलब frictional force, it tries to kill the relative velocity, it tries to reduce the relative velocity, it tries to make the relative velocity zero, it tends to reduce the relative velocity, it tends to reduce the relative velocity. It tends to reduce the relative velocity. चलो अब मैं एग्जांपल्स देता हूं। पहला एग्जांपल यही लो एग्जांपल ये वाला, सॉरी
ये फोर्स है, ये फोर्स, इसका वेलोसिटी देना, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी? इनिशियली जीरो, बिकॉज इसका वेलोसिटी भी जीरो है, इसका वेलोसिटी भी जीरो है, बॉडी का भी वेलोसिटी जीरो है और सरफेस जिस पर ये है उसका वेलोसिटी भी जीरो है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। ठीक, अब ये जो है ये इसको आगे की ओर वेलोसिटी देना चाहता है, उसका मतलब यह है कि अगर इसको वेलोसिटी कुछ मिलता है देन देयर विल बी अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी क्रिएटेड बाय दिस फोर्स। ये फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट करेगा क्योंकि ये इसको वेलोसिटी v देगा, इसका जीरो है, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v माइनस जीरो, दैट इज v। फ्रिक्शनल फोर्स को वो अच्छा नहीं लगेगा, वो इसको u फोर्स देता है और इसको कहता है कि भाई देखो, अगर ये आपको v वेलोसिटी आगे की ओर देगा, मैं पीछे की ओर वो वेलोसिटी रिड्यूस करूंगा ताकि आपका वेलोसिटी जो जीरो है वही जीरो रहे, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी आगे की ओर वेलोसिटी जो है दैट विल क्रिएट ए रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर ये फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल ट्राई टू रिड्यूस दैट रिलेटिव वेलोसिटी। बी, देखिए जरा, ये बॉडी है, इसका वेलोसिटी समझो 10 है और ये दूसरा बॉडी है इसी पर, इसका वेलोसिटी समझो 5 है। बताइए इस पर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन और इस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि दोनों बॉडीज है। इस वक्त इन दो बॉडीज का बाज़ाब्ता रिलेटिव वेलोसिटी है 10 minus 5, that is 5, because relative velocity is difference of the two velocities, v2 minus v1। अगर ये v2 है, ये v1 है, v2 minus v1 is the relative velocity। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल टेंड टू रिड्यूस देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, वो ऐसे कुछ काम करेगा, वो कहेगा कि इसका वेलोसिटी अगर 5 है वो 10 बनना चाहिए ताकि 10 minus 10 is 0, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम 0। और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसा होगा कि वो इस वेलोसिटी को कहेगा 5 बनो ताकि 5 minus 5 is 0। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा टू मेक 10 minus 10 0, और फ्रिक्शनल फोर्स इसका वेलोसिटी 10 से 5 बनाने की कोशिश करेगा ताकि 5 minus 5 is 0। तो इस पर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, इस पर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, टू मेक दिस 10 as 5 एंड टू मेक दिस 5 as 10। तो that means what we mean by it opposes the relative velocity, it wants to kill the relative velocity। अब ये सचमुच ये वेलोसिटी 10 से 5 बनेगा वो दूसरी बात है, मगर ये फोर्स जो है वो इस 10 को रिड्यूस करके 5 बनाने की कोशिश करेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स इस 5 को 10 बनाने की कोशिश करेगा। सो इस पर फोर्स जो है वो फॉरवर्ड की ओर होगा टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू 10, और इस पर फोर्स होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू रिड्यूस दिस वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 5, हियर टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 10। तो आपको एक ही पर निकालना होता है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरे पर तो अपोजिट होगा ही न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दिस इज द टेक्निक बाय विच यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। वैसे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पे अक्सर लोग गलतियां करते हैं, आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा। कभी कभी ये बहुत ही ईजी होता है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना, कभी कभी मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा, when the body person moves in the forward direction, sometimes you feel frictional force is backward. No, if you move in the forward direction by walking, the frictional force is in the same direction as you are walking. It is the friction that makes you walking in the forward direction. Okay. Now, equally challenging is fifth point. Equally challenging is how to find the magnitude of frictional force. Magnitude वो ज्यादा ही चैलेंजिंग है, उसको भी पूरी अच्छी तरह से देखना पड़ता है। Magnitude of frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी स्ट्रेंज फोर्स, इसका कोई मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है। कभी कभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ही नहीं होता है, कभी फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, कभी फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। इसका कोई एक स्टैंडर्ड का फॉर्मूला तो है नहीं।
हर वक्त आपको सोचना पड़ेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. सो आई विल गिव यू टेक्निक टू फाइंड हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बॉडी, ऑन ए सिंगल बॉडी. तो ये लो, ये सरफेस है, ग्राउंड है, ये इस पर ये बॉडी है, इसका मास m है और डाउनवर्ड फोर्स mg है. ये नॉर्मल रिएक्शन देता है सरफेस ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन n. देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg. पहले याद रखना पड़ेगा. ठीक, मैंने इस पर फोर्स दिया F. फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वो अपोजिट में आएगा, यूं आएगा फ्रिक्शनल फोर्स. तो बताइए मुझे व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ए, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट. आपने फोर्स को क्या दिया पहले वैल्यू? चलो मैं यहां पर फोर्स का, आपने 1 न्यूटन दिया पहले वैल्यू, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4, 5. आप इस फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं. ये जो अप्लाइड फोर्स है आपने इसको इंक्रीज, पहले 1 न्यूटन दिया, पहले 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन. ठीक, आप इस अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? अब जरा देखो, मैं आपको यहां समझाता हूं. आपने ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड इज एट रेस्ट, और ये बॉडी जो ऊपर इस पर बैठा है ये भी रेस्ट में है. आपने फोर्स 1 न्यूटन दिया, लेकिन बॉडी हिलती नहीं है, बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट में है बॉडी. तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन होगा, क्योंकि आपने 1 न्यूटन दिया, वहां से भी 1 न्यूटन आया और एक्सेलरेशन हो गया 0, तो हो गया बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट. तो 1 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है. जितना आपने फोर्स दिया, उतना आपने फ्रिक्शनल फोर्स ने आपका वो फोर्स न्यूट्रलाइज कर दिया, पूरा न्यूट्रलाइज आपका फोर्स, अप्लाइड फोर्स खत्म कर दिया आपने इसने. अब आपने 2 न्यूटन दिया फोर्स, लेकिन बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन. आपने 3 न्यूटन दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 न्यूटन. आपने 4 न्यूटन दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 4 न्यूटन. मतलब जो आप फोर्स देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना आता है, वहां से अपोज में आता है, और बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलती, बॉडी अपनी जगह है. आपने 5 न्यूटन दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन. 6 दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 6. 7 दिया, 8 दिया, 9 दिया, सपोज 10 भी दिया. 1 अप्लाइड, फ्रिक्शनल फोर्स 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5. तो मतलब साफ हुआ. यहां पर आप एक चीज कैटेगरी के लिए आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इफ द बॉडी इज एट रेस्ट. खत्म. एक ये कानून बन गया. ये कानून बन गया. 6th पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स मैग्नीट्यूड. फ्रिक्शनल फोर्स मैग्नीट्यूड is equal to applied force if the body is at rest. If the body is at rest, अगर बॉडी रेस्ट में है, समझो ये जो फोर्स अप्लाई आपने किया, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी आया. तो जब देखो, अब ये है कि अब जब तक बॉडी रेस्ट में है, आपको फ्रिक्शनल फोर्स मेजर करने की जरूरत ही नहीं है. फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड फोर्स. पहले आपको पता होना चाहिए बॉडी रेस्ट में है, कहीं मोशन में तो नहीं है. ये तो फॉर्मा है सिर्फ रेस्ट के लिए. तो रेस्ट के लिए अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है. रेस्ट, बॉडी इज रेस्ट, हाउ मच इज द अप्लाइड फोर्स? दिस मच, एंड दैट मच शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स. ए. बी, तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4 10 10, मैंने 11 फोर्स दिया अप्लाइड फोर्स. मैंने अप्लाइड फोर्स 11 दिया.
लेकिन बॉडी बिगिन्स टू मूव, बॉडी बिगिन्स टू एक्सेलरेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह फ्रिक्शनल फोर्स मुझे मैच करता था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7, लेकिन आखिरकार अप्लाइड फोर्स तो मैं जितना चाहूं दे दूं, लेकिन यह फ्रिक्शनल फोर्स इसने सरेंडर किया है, यह सैचुरेट हो गया। यह अब कह रहा है कि भाई देखो, इस 11 से या 10 से मैं आगे नहीं जा सकता, इस 10 से या 11 से या 12 से मैं इसे, आप कितना भी अप्लाई करो, लेकिन अब मेरी हालत अब खराब हो गई है, अब it is the maximum that I can provide. So there is a concept of maximum frictional force, F max. मगर F max भी applied force के बराबर है, वो भी applied force के बराबर है। F max, it is also applied force because the body is still at rest. It is now about to move. About to move means it is still at rest. जहां जब तक रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है, लेकिन अब यह मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर तो है ही, लेकिन साथ में इट इज म्यू एस एन। म्यू एस एन, व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस इज, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the two surfaces, between the two surfaces, between the two surfaces, between the two surfaces in contact, between the two surfaces in contact. मतलब 1 1 2 2 3 3 10 10, applied force 10, frictional force भी 10, applied force 11, the body begins to move. मतलब जो ये बैकवर्ड फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स जो आ रहा था, इट हैज सैचुरेशन वैल्यू, इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस एन। तो नॉर्मल रिएक्शन वहां निकालना पड़ेगा बॉडी पर, जो वो बॉडी है, उस बॉडी पर कितना नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की ओर, या नॉर्मल रिएक्शन किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब बॉडी ग्राउंड में है तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर ही और होता है, लेकिन कहीं बॉडी सरफेस पर चिपकी है, कहीं बॉडी सरफेस के साथ टच कर रही है किसी वर्टिकल वॉल से, तो वहां नॉर्मल रिएक्शन किसी और डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज एडजस्टिंग फोर्स, ये एडजस्ट करता रहता है अप्लाइड फोर्स को, लेकिन फाइनली ये सरेंडर करता है। जब आपने अप्लाइड फोर्स बहुत बढ़ा दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब क्या करेगी बॉडी? अब कौन सा, अभी तो बॉडी रेस्ट में है, बट हियर इट इज अबाउट टू मूव। अब सी जो है, सी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, when the body is in motion, अब तो एक ही, ये तो this is the only option with the body now. Body can be at rest, it can be about to move, or it is in motion. Is at rest, you know, applied force is called frictional. About to move, it has a maximum value. Frictional force has a maximum value. Now in motion, when the body is in motion, then frictional force is mu n again, but mu k n. When the body is in motion, friction, coefficient of friction slightly decreases between the two surfaces. That's called coefficient of kinetic friction. It is called mu k is coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. And this coefficient of kinetic friction is slightly less than coefficient of static friction. थोड़ा सा इसे कम होता है। That's all. तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये भी कंट्रोवर्शियल होता है, इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है। आपको पहले देखना है कि बॉडी का स्टेट क्या है, बॉडी रेस्ट में है, अबाउट टू मूव कर रहा है, या बॉडी मोशन में है। तीनों केसों में आपको आपके सामने अब फ्रिक्शनल फोर्स है। अब जरा देखो, मैं अब आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, 6th, ये इंक्लाइन है और ये बॉडी है, रेस्ट में है। बताइए फ्रिक्शनल फोर्स, बताइए फ्रिक्शनल फोर्स।
बताइए ज़रा, शाबाश बताइए। बॉडी रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स। तो पहले देखो अप्लाइड फोर्स क्या है। अप्लाइड फोर्स ये mg sin थीटा है। इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऊपर की ओर, दैट इज mg sin थीटा। आंसर, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये बॉडी तो रेस्ट में है। सेवंथ चलो मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, एक अच्छा खासा एग्जांपल। ये बॉडी है, इसका मास 2 kg रखो, फोर्स F और mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, n is equal to mg. M is 2, G could be taken as 10. Okay, mu S is equal to, okay, 0.5. Mu K, let me suppose it is 0.4. Coefficient of kinetic friction is 0.4. तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20। अप्लाइड फोर्स जब ये है तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स क्या है। अप्लाइड फोर्स 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20। सोचो जरा, थिंक फॉर ए मोमेंट, क्या होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स। अभी यही पता नहीं कि बॉडी रेस्ट में रहेगा कि मोशन में होगा, वही पता नहीं, तो हाउ कैन यू फाइंड द आंसर। इसका मतलब जब मैंने बॉडी पर फोर्स दिया 1 न्यूटन, मुझे क्या पता है बॉडी हो सकता है मूव करे, हो सकता नहीं भी मूव करे, तो हाउ डू आई नो फ्रिक्शनल फोर्स अनलेस आई नो बॉडी इज एट रेस्ट। पता है देन तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अबाउट टू मूव तब भी मुझे पता है अबाउट टू मूव है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन में है तो तब भी मेरे पास फॉर्मूला है म्यू के एन। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं कि इज इट इन मोशन और इज इट एट रेस्ट, इसलिए मुझे निकालना चाहिए पहले मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। भले वो मुझे निकालना नहीं है या वो आंसर नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा बॉडी का स्टेट देखने के लिए। बॉडी का जो स्टेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए मुझे देखना ही पड़ेगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, एफ मैक्स, दैट इज म्यू एस एन, दैट इज म्यू एस एन इज एम जी, ये वाला, दैट इज म्यू एस इज व्हाट 0.5, इट इज 2, इट इज 10 पॉइंट, ये हुआ 5, हो गया 10 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है। जो मैक्सिमम अपोजिशन आएगा वो 10 न्यूटन का आएगा, लेकिन मैक्सिमम अपोजिशन तक सारे अपोजिशंस आएंगे। इसका मतलब जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स यहां से दिया तो वहां से कितना आएगा 10? नो, ये तो मैक्सिमम है। 10 तक तो वो एडजस्ट बेचारा करता है, 10 तक तो वो कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब आपने यहां से 10 दिया तो ठीक है, 11 दिया तो कहेगा भाई 10 तो मेरा मैक्सिमम है, अब जाकर के एक्सेलरेट हो जाऊंगा मैं। और तब भी क्या है, तब तो मोशन में है, तब हमें पता है क्या करना है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस 1 पर 1, 3 पर 3, 5 पर 5, 6 पर 6, 8 पर 8, 10 पर 10, 10 पर 10 आएगा। अब आपने अप्लाई किया 12 न्यूटन का फोर्स, अब तो मूव करेगा। जब आपने 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, अब तो अपोजिट में 10 देगा, ये तो मोशन में आएगा। इसका मतलब यह एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, सो इट विल मूव। तो जब मोशन में आएगा 12 पर, तब जाकर क्या होगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एफ के, दैट इज म्यू के एन, दैट इज म्यू के एन इज एम जी। तो it is fk is equal to mu k is 0.4 into 2 into 10, that is 8 न्यूटन। मतलब जब मोशन में आएगा फ्रिक्शनल फोर्स कम ही हुआ। पहले ये 10 न्यूटन का अपोजिट देता था, अब ये 8 न्यूटन का ही देगा, लेकिन मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। खत्म। अब 14 न्यूटन पर
अरे यार 40 न्यूटन पर भी मोशन में है तो यही आंसर है, 20 न्यूटन पर भी मोशन में है तो यही आंसर है। तो पहली बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा स्टेट ऑफ द बॉडी, इज इट एट रेस्ट, इज इट अबाउट टू मूव और इज इट इन मोशन, वो देखना पड़ेगा। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा सा कम है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, 10 है। ठीक, तो अब जरा देखो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा, 7th पॉइंट, अगर ग्राफ में प्लॉट करूंगा अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स 0, फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो 0, 1 1 2 2, तो ग्राफ ऐसे आएगा 45 पर, सेम, यहां तक तो सेम है एफ, मगर यहां पर अब एफ मैक्स हो जाएगा, दैट इज म्यू एस एन। तो म्यू एस एन तक अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर 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 होता है, लेकिन अब जाकर जब बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा कम कम हो जाएगा। तो यहां से ग्राफ यूं करके यूं आ जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स कितना भी दे दो, फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, एफ के बराबर, दैट इज म्यू के एन, वो थोड़ा सा कम होता है म्यू एस एन के एन से। तो ये है पहला लेक्चर फ्रिक्शनल फोर्स पर। थोड़ा सा हमने सीखा, 2-3 लेक्चर हम देंगे, तीनों लेक्चर 4 लेक्चर इसमें अगर लगेंगे, अच्छी तरह से कर लो, मैं आखिर तक इसके एप्लीकेशन सारा कुछ बताऊंगा। कंटिन्यू टू वॉच द लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल तांत्रिक फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।